Hello and welcome. I, Shreya, founder of Udeta, is starting with new podcast. Its name is Tales of Unstoppable. Here we talk about the stories of innovation and impact and the people who have really struggled. We have invited the person who is actively working for building a great future. I'm talking about Swambhu Innovative Solutions Private Limited, a name that's beginning synonyms with sustainable progress and cutting edge innovation in India's rapidly evolving tech landscape. At a time when most businesses are looking to chase trends, Swayambhu is doing something different, creating value driven solutions with conscience, whether it's green technology, smart automation, or grassroots level impact initiative. So here we have Akansha ma'am to share her story, how she started with some Swambhu Innovative Solution, what hardship she faced, and everything. So let's begin. I started this journey when I was doing my master's in my college, TIS Mumbai, Tata Institute of Social Sciences. And we had to write a research, we had to write a thesis based on a topic, any topic we can choose. So I choose why did biogas and biofuel has failed in India and how it can be implemented in villages or in a community in a decentralized way. बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि सेंट्रलाइज होने की वजह से भी प्लांट नहीं चलता है या फिर गांव में भी बहुत बार प्लांट बहुत फेल होते थे जिस कारण से पीपल ऑल्सो टर्न वेरी मच नेगेटिव कि ये प्लांट नहीं चलता है इट्स एक्चुअली अ फेल्ड टेक्नोलॉजी तो once I was doing a rural internship through my college and I was in a Jhabua. It's actually a tribal village और वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है और वहां पे मैंने नोटिस किया कि देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इवन मतलब वी हैड टू लिव देयर फॉर लाइक 15 days एंड वी हैड टू रियलाइज गांव की लाइफ कैसी होती है सो वी स्टेड देयर इन अ विलेज जहां पर टॉयलेट्स भी नहीं थे सो इवन वी वर मेड टू practice what is actually open defecation and how females are being affected that they have to get up at 4 a.m. in the morning just because they have to go for defecation. They can't get up late and go for the defecation. At the same time what I saw कि शाम को जब बिजली चली जाती है उसके पहले they are cooking meal and the time by the time they are consuming that is around 8 or 9 o'clock it becomes a cold food. तो ये भी एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत इफेक्ट कर रहा था उनकी पूरी फैमिली को प्लस दे डोंट हैव एनी सिलेंडर फैसिलिटी जस्ट बिकॉज वो गांव में रहते हैं तो वो मैंने नोटिस किया कि विमेन एनीवे गेट्स अफेक्टेड बाय द स्मोक जो उनको समझ नहीं आता है जैसे पटना में भी एक बार जब बाढ़ आई थी तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक कैंप लगाया था और उसमें नोटिस किया कि 60 to 70% लेडीज को टीबी की बीमारी है बट उन्हें नहीं पता उन्हें लगा कि ये सिंपल खांसी है और उनके बच्चों का भी लंग्स बचपन से अफेक्ट हो जाता है क्योंकि जब माँ किचन में खाना बनाती है विद हेल्प ऑफ वुड और काउ डंग तो इट अफेक्ट्स देयर लंग टू क्योंकि बहुत धुआं होता है क्योंकि वो किचन में ही अपने माँ के पास बैठे होते हैं तो मोर और लेस ये देखा जाता है कि बच्चों का भी लंग बचपन से ही इफेक्ट हो रहा है और वो बड़े होकर के उनका लंग मोस्टली डैमेज होता ही है तो दिस इज व्हाट आई सॉ कि दीज आर लाइक इनडायरेक्ट थिंग्स जो हमें नजर नहीं आ रहा है बट इट्स इवेंचुअली अफेक्टिंग देयर बिजनेस देयर हेल्थ देयर एजुकेशन बिकॉज आफ्टर 5 o'clock बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनके शॉप्स क्लोज हो जा रहे हैं एट द सेम टाइम व्हाट आई नोटिस्ड कि जो फार्मर्स हैं उनको बिजली नहीं मिल रही है तो उनको इलेक्ट्रिसिटी कब आ रहा है तो रात को 2 बजे या 3 बजे एंड जस्ट बिकॉज इट्स अ जंगल एरिया तो एक दो न्यूज मतलब अभी भी आते हैं कि जब वो रात को इरिगेशन के लिए जाते हैं तो उनको कोई जानवर मार देता है तो दे आर नॉट ओनली getting affected with their health or education or financially but eventually they are losing their life also so that's how my journey got started that why can't we set up a biogas plant in a decentralized mode जहाँ पे instead of setting up a single biogas plant
क्योंकि सिंगल बायोगैस प्लांट बहुत बार फेल हो जाते हैं, और उसका एक मेजर रीजन ये भी होता है कि either a community which becomes poor, they sell off their cattle और दे शिफ्ट देयर विलेजेस, तो वो प्लांट लेके भी ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो एक मेरा ये मुहिम चालू हुआ था 2015 में, मैंने स्टार्ट किया था, और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने हमें फंड किया था बहुत स्टार्टिंग में। इससे वी डिड अ पायलट प्रोजेक्ट, और अभी तक हम लोग काफी सारे बायोगैस प्लांट्स लगा चुके हैं, जिसमें हम रूरल कम्युनिटी को प्लस जो शहरों में कम्युनिटीज होती हैं लाइक हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ बहुत सारा वेट वेस्ट निकलता है, एंड इफ दे हैव अ स्पेस दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन बायोगैस प्लांट्स एंड either they use it as a cooking fuel or they generate electricity. फिर 2019 में हमने ये नोटिस किया कि when we are collecting a lot of wet waste, we are collecting plastic waste also, because India में we have a habit of non segregation. तो उस वक्त वी वर वर्किंग विद हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ पे हम लोग उनके सीएसआर प्रोजेक्ट जिसका नाम प्रभात है उसके साथ काम कर रहे थे। और फिर जो उनकी हेड थी प्रोजेक्ट की, शी आस्क्ड अस व्हाट बेस्ट वी कैन डू, एंड देन वी थॉट कि वी कैन रिसाइकल दिस प्लास्टिक। एंड देन इन 2021 2022 एक्चुअली वी सेट अप आवर फैक्ट्री इन हरिद्वार, जहाँ पे वी वर्क विद लॉट ऑफ वेस्ट पिकर्स, municipalities. Recently we got collaborated with the railways, जहाँ पे हम वेस्ट प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं और उसका एक कंप्रेस्ड बोर्ड्स बनाते हैं, विच इज इवेंचुअली gets converted into furniture because it's an alternative of plywood. Major challenge which I faced was कि when I started working with the biogas plant, community was not ready to adapt because according to them it's a failed technology. उनको हमेशा लगा कि बायोगैस प्लांट तो चलता नहीं है, एंड इट वाज द फेल टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस। पहले सब्सिडी मॉडल चलता था, तो जो कंस्ट्रक्ट करता था वही सब्सिडी लेकर जाता था, तो वो राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के साथ प्लांट नहीं कंस्ट्रक्ट करता था। और प्लांट इज समथिंग विच हैज अ मीथेन गैस विच हैज लॉट ऑफ प्रेशर इनसाइड, अगर आप राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल नहीं डालोगे तो वो क्रैक कर जाएगा, एंड इट गॉट क्रैक्ड। और फिर उसके बाद टेक्नीशियंस उनके पास नहीं थे क्योंकि वो पैसा खा के भाग चुके होते थे। दूसरा एक मेजर रीजन ये था कि पीपल वेर नॉट टेक्निकली साउंड बिकॉज उनको सिखाया नहीं गया कि हाउ टू ऑपरेट द प्लांट। मेनी टाइम्स इफ यू सी इन रूरल एरियाज, पीपल हैव एन हैबिट कि जहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं, घर का बहारना फेंक रहे हैं, वहीं गोबर फेंक रहे हैं, वहीं पर अपना घर का जला हुआ राख फेंक रहे हैं। So they had a habit of collecting all material at a once and dump in the biogas plant. तो उससे क्या था कि प्लांट में प्लांट खराब होता गया उससे भी, एंड दे हैड नो टेक्निकल नॉलेज कि उसको क्लीन कैसे कराया जाता है। तो दिस वाज वेरी, पीपल वर वेरी रिलक्टेंट। मुझे 6 महीने हो गए थे कॉलेज से निकल के गांव में काम करते हुए, और कोई जमीन देने को रेडी नहीं था, कोई काउडंग देने को रेडी नहीं था। अगर देता भी था तो 1-2 महीने देता था सही रेट पे, फिर उसका रेट बढ़ा देता था क्योंकि उसको लगता था कि मैं शायद ज्यादा कमा रही हूँ, उसको कम दे रही हूँ। यू नो, लॉट ऑफ बिहेवियर चैलेंजेस जो एक गांव में लोगों का होता है कि हम क्यों दे, हो सकता है इसने गवर्नमेंट से पैसा खाया हो, इसको सब्सिडी मिल रही हो। वो ये नहीं सोचते हैं कि उनका फायदा हो रहा है इवेंचुअली, है ना। उनको एक गुड क्वालिटी ऑफ मैन्योर मिल रहा है, या उनको एक घर बैठे बिजली मिल रही है। और मैंने जिस कम्युनिटी के साथ काम करना स्टार्ट किया था वो पूसा, सीता समस्तीपुर में जो पूसा है उसके पास एक दलित कम्युनिटी है, और जस्ट बिकॉज वो दलित है उसको बिजली नहीं दी गई थी, क्योंकि लोगों के साथ ये था कि उसके घर से वायर क्रॉस करके फिर मेरे घर में नहीं आना चाहिए क्योंकि हम अपर कास्ट। So this was also one of the deep down casteism which is in Bihar, especially उस वक्त। तो फिर जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो लाइन कटने के बाद दलितों के घर में लाइट है और हम अंधेरे में हैं, एंड देन पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग कि आप हमें भी इलेक्ट्रिसिटी दे दो। वो, एंड आई चार्ज वेरी नॉमिनल, इट वाज लाइक 30 रुपीज पर मंथ, और हमने उनको एक बल्ब और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया था। बट स्टिल फिर वही प्रॉब्लम हुआ कि 2 महीने बाद फिर उस कम्युनिटी के साथ भी इशू हो गया कि वो कम्युनिटी को लगा कि अरे ये तो कुछ ज्यादा कमा रही है, मुझे कम दे रही है, हमसे ज्यादा पैसे ले रही है, एंड ऑल वॉट एवर। तो ये एक बहुत मेजर चैलेंज है कि जब आप कम्युनिटी का एक बिहेवियर चेंज करते हो, और ये भी समझाना कि ये आपके फायदे का है, मेरा फायदे का कम है,
दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। मतलब प्रोजेक्ट पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं, आप उसका आरओआई वगैरह सब निकाल लेते हो, बट जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो इट फेल्स, बिकॉज every community has different mindset and different way of accepting you. एक तो मेजर बहुत ज्यादा मुझे फेस नहीं हुआ सच बताऊं तो, बट हाँ जरूर होता था जब हम गांव में जाते थे। तो मतलब अभी भी ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज विद द मेल, नॉट विद द Yeah, फीमेल। true. So whenever I used to go to villages, wanted to talk to the ladies, they were not there. Then I had to talk to the male. फिर वो मुझे थोड़ा हल्के में लेते थे कि अरे ये तो लेडीज है, ये पता नहीं बायोगैस प्लांट कहाँ से बनाएगी। एंड बायोगैस प्लांट इज समथिंग which I always say that it's a female product, it's not a male product, क्योंकि उससे निकलने वाला जो गैस है वो फीमेल यूज करती है। ठीक है, जी। इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग which gets everyone, but foremost, first and foremost is cooking fuel which is used by a woman, एंड यू गेट द मैन्योर। और देखा जाए अगर बिहार का हम एग्रीरियन सोसाइटी देखें तो जो मेल है वो माइग्रेट कर जाते हैं और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो विमेन देखती हैं। तो अब विमेन फार्मर का जिक्र कहीं नहीं होता है, हमेशा एक मेल फार्मर का जिक्र होता है ना, क्योंकि लगता है कि हाँ ठीक है तो महिला है कुछ तो कर लेगी। तो ये एक स्टार्टिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग सीरियसली नहीं लेते थे। इवन डिपार्टमेंट्स में जाओ तो लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होते थे। इवन आज भी देखा जाए तो जब मैं और मेरे हस्बैंड साथ में मीटिंग करने जाते हैं तो जो कि जबकि मैं हूँ डायरेक्टर, वो उसका वो डायरेक्टर भी नहीं है कंपनी में, ही इज एक्चुअली असिस्टिंग मी, बट स्टिल लोग उसको देख के बात करते हैं और मुझे देख के बात नहीं करते, कि उनको लगता है कि हाँ ठीक है ये तो इसका बस हेल्प कर रही होगी और मेन यही है बात करने वाले। और फिर जब वो डायरेक्ट कर देता है कि नहीं नहीं कंपनी इन्हीं का, ये डायरेक्टर आप इनसे बात करिए, तो वो थोड़े से झिझक में आ जाते हैं। दूसरा एक बड़ा इशू ये था कि रेड मतलब अंडर टेबल गवर्नमेंट में बहुत चलता है, तो पीपल लव ब्राइबरी एंड ऑल। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं मीटिंग करने जाती तो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते थे क्योंकि उनको कुछ परसेंट या अंडर टेबल चाहिए होता था। तो उसमें फिर मुझे मेरे हस्बैंड को भेजना होता था कि यू गो एंड टॉक, आई डोंट नो व्हाट इज हिज एक्सपेक्टेशन, व्हाट ही इज मेइंग। तो उसमें एक थोड़ा सा टाइम भी बर्बाद होता है कि आप मीटिंग करने जा रहे हो बट लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर आपको अपने हस्बैंड को लेके जाना पड़ रहा है। फिर एक चीज और क्या होता है, लोग आपको अवेलेबल समझते हैं कि अच्छा अगर फीमेल इस सोसाइटी में है तो शायद अवेलेबल भी होगी, यू नो। So there were few scientists, I don't want to name the department or the name or the government part, anything, but there were people who expected me कि मैं apart from office hour भी उनसे बात करूं, उनसे मिलूं। So this is also one of the thing which you have to maintain in your professional life कि नहीं मैं professionally आपके साथ हूँ। And when you don't respond them, they take it on their ego and they stop updating you or supporting you from the department. So this is, I think, one of the major challenge. फीमेल सेक्शन है अभी हमारे सोसाइटी का, वो मैं एक बोलना चाहूंगी कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है जैसे मतलब मेरे पेरेंट्स का भी था कि अगर ये बिजनेस में चली जाएगी तो इससे शादी कौन करेगा, तो हमारा हमेशा होता है कि नहीं जॉब मत करो, फिर शादी के बाद कहाँ रहोगी पता नहीं, जहां तुम्हारा हस्बैंड होगा तुमको हो सकता है वहां जाना पड़े। तो लेट्स नॉट डिसाइड दैट, लेट्स डिसाइड योर प्रोफेशन फर्स्ट। अगर आप जॉब में हैं तो वो एक म्यूचुअल डिसीजन करना अच्छी बात है कि हाँ कौन कहाँ रहेगा वो ठीक है, बट इस कारण से बिजनेस स्टार्ट नहीं करना कि आई डोंट नो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं क्योंकि तुम बिजनेस करोगी। और ऐसा हुआ है मेरे साथ। जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे बॉयफ्रेंड थे, तो हमने शादी करी, बट उसके पहले जितने भी रिश्ते आए दे लाइक्ड माई प्रोफाइल, सब कुछ था, लेकिन एट द सेम टाइम दे डोंट वांटेड मी इन देयर फैमिली। वाई? बिकॉज आई वाज डूइंग बिजनेस। तो एक वो भी इशू होता है कि बिजनेस करेगी घर में, हो सकता है टाइम ना दे, हो सकता है ये बहुत ट्रैवल करे, कहाँ कहाँ ट्रैवल करे। सो समहाउ सोसाइटी इज मेल डोमिनेटिंग एंड मेल थोड़ा वो फीमेल कंट्रोलिंग सोसाइटी। मतलब टचवुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है मेरे ससुराल बहुत अच्छा है, दे अलाउ मी टू गो एनीवेयर, वियर एनीथिंग व्हाटएवर आई वांट टू, सब कुछ है।
बट हाँ, मतलब ये सोच के अपना अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बिफोर मैरिज और नहीं करेंगे कि पता नहीं हमारा इन लॉज फैमिली कैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन यू डू योर ओन बिजनेस, यू डू योर ओन वर्क, आपको आपका पार्टनर मिल जाता है, अपने प्रोफेशन का मिल जाता है या फिर जॉब वाला भी मिल जाता है। बट हाँ, यू हैव टू फर्स्ट सेट योर ओन स्टैंडर्ड। एक इन जनरल मैं बोलना चाहूंगी फॉर ऑल द यूथ्स आउट देयर, बहुत बार क्या होता है कि आ, हमें ऐसा लगता है कि आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें बहुत पैसा है, तो दे जस्ट जंप इन। तो वो भी नहीं करना चाहिए। पहले अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपका बहुत पैसा लगने वाला है और बहुत आपका टाइम मनी सब जाने वाला है, तो इट्स बेटर दैट यू डू अ वेरी रिगरस पायलट। आप लोगों से मिलो, बिजनेस देखो, समझो उसका फिनेंस, समझो उसका मार्केट, समझो। ज्यादा हो तो वैसे किसी बिजनेस में जाके इंटर्नशिप कर लो, बट एक रिगरस रिसर्च करो। उसके बाद फुल फ्लेजेड बिजनेस भी स्टार्ट मत करो, उसका एक पायलट करो जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा जाए, ताकि आप भी समझ सको। क्योंकि बहुत बिजनेसेस इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि वो एकदम से पैसा लगा देते हैं, उनको लगता है कि चल ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें जो लगता है वैसा सोसाइटी नहीं सोचती है, सोसाइटी का सोच उल्टा चलता है। हमें ऑन पेन एंड पेपर पे प्रोजेक्ट सुंदर लगते हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू से, ट्रैवल अ लॉट, मीट मोर पीपल, लर्न, गेन नॉलेज। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बिल्कुल वो नहीं सिखाता है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए होता है। सही सो आई बात। थिंक डू मोर इंटर्नशिप्स, मीट मोर पीपल, एंड देन, जैसे आजकल के बच्चों को मैंने देखा है कि उनको सीखना नहीं है, उनको बस जॉब चाहिए, उसमें भी पार्ट टाइम वाला जॉब चाहिए, और वो सीखना भी नहीं चाहते। तो दिस शुड नॉट हैपन। मतलब अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाओगे उतना सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करेगी। और फंडिंग वंडिंग आज के डेट में इट्स इजी, इफ यू आर डूइंग गुड जॉब, गवर्नमेंट इज देयर, प्रोजेक्ट्स के सीएसआर हैं। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था 2015 में, तब तो स्टार्टअप इंडिया का कोई सीन नहीं था, सीएसआर से इतने स्ट्रांग नहीं थे। बट देन इवेंचुअली चीजें मार्केट में आई और अब बहुत इजी है। आप किसी भी सेक्टर में अपना स्टार्ट करिए, यू गेट फंडिंग वेरी इजी।